Hello dear students, welcome to this e-learning class. Today we will discuss about the basics of congenital anomalies. First of all, definition. The congenital word is formed from the two Latin words con, con means together, and genital word means birth. Together from the birth. Anomalies which are present since birth, they are known as congenital anomalies, or they are also known as birth defects, and we can define them as structural, behavioral, functional and metabolic disorders that occur during intrauterine life and can be identified prenatally at birth or later in infancy, but the cause or the beginning lies in intrauterine life. There are various terminologies used in conjunction to the congenital anomalies. Some of them are discussed here. First and foremost is malformation. What is a malformation? Malformation बोलते हैं हम when a partial or partial or complete non-formation or alteration in normal structure. तो उसमें क्या रहता है कि देयर में भी पार्शियल और कंप्लीट नॉन फॉर्मेशन. Malformation that indicates there is problem in formation during the period of embryo formation, right from the third to eighth week, when there are some problems or some teratogenic agents acting upon or disturbance in normal homeostasis. There may be alteration or non-formation of some of the structure, and this particular problem comes under malformation, like cleft lip or NTDs, neural tube defects. Then another term used is dysplasia. Dysplasia, it pertains specifically for a tissue. Malformation can occur in many tissues simultaneously, while dysplasia is particularly a problem of single tissue, like skeletal dysplasia. So it can be defined as intrinsic cellular architecture of a tissue is not normally maintained throughout growth and development. The example is like skeletal dysplasia. Then comes disruption. So malformation or dysplasia both are related with the non-formation or alteration in the formation. Then there comes disruption. In disruption there is morphological changes in already formed structure. यहाँ पे structure बन गया बट उसमें जो है कुछ किसी एक्सटर्नल के फैक्टर के कारण उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है. स्ट्रक्चर इज़ देयर बट its growth is not there, then it is known as disruption, like amniotic band disruption. जैसे amniotic band disruption में there may be absence of some fingers or maybe slight limb disruption, and there may be vascular accidents leading to intestinal atresia. These all comes in disruptions. Then comes deformation. Deformation is when a thing is formed and due to external mechanical forces it get deformed, like talus. Talus is clubfoot. Like in oligohydramnios there is no space and foot is pressed from the ankle, then it can result in clubfoot. That is deformation. After formation, due to mechanical forces, the particular part is deformed. Then comes syndrome and associations. The syndrome is constellation of major and minor anomalies that occur together in a predictable fashion. It is very important. It is in a predictable fashion, presumably due to a single underlying etiology. There is a single underlying etiology, and there is a constellation of major and minor. कुछ major और कुछ minor anomalies इकट्ठी होना, और किस तरह से होना, एक प्रिडिक्टेबल फैशन से, कि पता है हमको कि इस तरह से ही होगा. जैसे डाउन सिंड्रोम में हमको पता है कि मोंगलॉइड स्लैंट ऑफ आइज होगा, देयर विल बी फ्लैट नेजल ब्रिज, और देयर में बी दिस एपिकेंथल फोल्ड्स एंड लाइक क्लिनोडैक्टाइली, सैंडल गैप. इस तरह से कॉन्स्टिलेशन है, कुछ मेजर हैं, कुछ कनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म है. तो
कुछ कंजेनाइटल एनॉमलीज की कॉन्स्टिलेशन एंड प्रिडिक्टेबल फैशन में लगभग सभी पेशेंट्स में उस तरीके से होगा, तो उसको हम जो सिंड्रोम बोलते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। देन अनदर टर्म इज एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनॉमलीज दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली टुगेदर देन वुड बी एक्सपेक्टेड बाई चांस, कि वो अलग अलग भी हो सकती हैं बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली इकट्ठी होती हैं। बट सिंड्रोम से कैसे ये अलग होती हैं कि दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल, हमेशा जो है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो एनॉमलीज हैं, जैसे 4 एनॉमलीज इकट्ठी हो गई और उनका इकट्ठे होना जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है बल्कि उनके अकेले अकेले होने से। दैट इज़ नोन एज एसोसिएशन। बहुत सारी एसोसिएशन क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के कारण आज नोन है। तो then comes types of congenital anomalies. तो congenital anomalies can be classified by various means, various styles. तो उसमें सबसे मेन जो रहता है मेजर congenital anomaly एंड माइनर congenital anomaly। तो मेजर anomalies which affect an infant's life expectancy, health status, physical और social functioning, दे आर डिस्क्राइब्ड एज मेजर एनॉमलीज। तो उसमें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डेथ हो सकती है, मोर्टलिटी हाई होती है इनमें, हेल्थ स्टेटस में प्रॉब्लम रह सकती है, फिजिकल जो है डिसेबिलिटीज़ उसमें लॉन्ग टर्म रह सकती है, सोशल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि माइनर जो है आर दोज विद अ लिटल और नो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंक्शन, तो उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, माइनर बहुत कॉमन होती हैं। टाइप्स में there may be single major anomalies or multiple major anomalies. Then another classification इसकी हमने पहले ही बात कर ली कि structure anomalies can be classified into anomalies that are due to abnormal tissue development, कि tissue development में ही प्रॉब्लम थी तो उसमें malformation और dysplasia हमने पहली 2 स्लाइड्स में बात करी। Then there may be others which arise after tissue development, टिश्यू डेवलप कर गया है बट उसके बाद जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बन गए हैं सेल्स बट सेल्स ग्रोथ से जो मास बढ़ना था वो नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें डिफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन आते हैं। देन कम्स द इंसिडेंस की कितनी होती हैं कंजेनाइटल अनोमली, क्या बर्डन है, डिजीज़ बर्डन क्या है। तो ग्लोबल इंसिडेंसेस आर अराउंड 30 to 70 पर 1000 लाइव बर्थ। इसमें बहुत रहता है कि कई जगह लाइव बर्थ है, कई जगह सिर्फ बर्थ काउंट कर रहे हैं, तो सिर्फ बर्थ काउंट करने में स्टिल बर्थ, जैसे एनेंसेफली वाले स्टिल बर्थ पैदा हो रहे हैं। तो अलग अलग इंसिडेंट्स जो है हर एक बुक्स में आपको मिल जाएंगे। बट डिजीज़ बर्डन का हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी हुई थी 2013 में, उसमें उसको टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ मोर्टलिटी इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स में लिया गया था, कि जो 10 मेन कारण हैं 5 साल से छोटे बच्चों में मृत्यु के, उनमें जो है एक कंजेनिटल अनोमली भी है। और इंडिया में भी एक स्टडी 2010 की थी जिसमें पाया गया कि कंजेनिटल अनोमलीज जो हैं वर fifth largest cause for the neonatal deaths, and it was estimated around 9% of the neonatal डेथ का कॉज जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो देर इज़ डिजीज़ बर्डन की चौथे पाँचवें नंबर पे जो कंजेनिटल एनोमली है डेथ कॉज करने में। प्रिविलेंस देखें तो इंडिया में डाटा उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, कुछ कोहॉर्ट स्टडीज़ से मिलता है, तो 1.7 to 3.1% ऑफ द टोटल बर्थ्स में, तो मतलब 100 में 3 तक भी जो है बच्चे मे बी बॉर्न विद कंजेनिटल एनोमलीज। रिलेटिव इंसिडेंस की बात करें तो रिलेटिव इंसिडेंस में यूजुअली जो है CNS या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो कंजेनिटल एनोमलीज हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बिकॉज दे आर इजीली आइडेंटिफाएबल ओवर फिजिकल एग्जामिनेशन। जबकि CSD कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो हैं उनमें इंसिडेंस या रिलेटिव इंसिडेंस कम है, जबकि दे मे बी मोर फ्रिक्वेंट बिकॉज दे आर नॉट इजीली आइडेंटिफाएबल
उनका पता जो है लेट चलता है, अगर माइनर है, बहुत सारी जो है ASD VSD डायग्नोज ही नहीं होते हैं कई कई साल तक, बिकॉज दे आर नॉट ईजिली डायग्नोज्ड बाई फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये पर 1000 बर्थ, इट इज़ नॉट लाइव बर्थ्स। बर्थ्स में जो है दिया गया है कि CNS की अनॉमलीज लगभग 7.6 होती हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स, सॉरी बर्थ्स। तो उसमें भी जो है द कॉमनेस्ट इज एनेंसेफली, देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इज सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट CNS कंजेनिटल अनॉमली, एंड मस्कुलोस्केलेटल में 6.6, जिसमें सबसे कॉमनेस्ट जो है टेलिप्स, अगर मेजर में लिया जाए तो टेलिप्स दैट इज़ क्लब फुट होता है। बाकी सिंडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, इस तरीके से बहुत सारी जो है मस्कुलोस्केलेटल की आपको देखने को मिल जाएंगे, आगे हम देखेंगे भी। कंजेनिटल हार्ट डिजीज 2.7 पर 1000 बर्थ्स, GIT की अनॉमलीज 5 में पर 1000 लाइव बर्थ, जेंटोयूरिनरी में 3.9। रेस्पिरेटरी की बहुत ज़्यादा जो है कंजेनिटल अनॉमलीज देखने को उस स्टडी में नहीं मिली है। कारण क्या है इनका, क्यों होती हैं कंजेनिटल अनॉमलीज? तो 50% केसेस में वी आर नॉट एबल टू लिंक टू अ स्पेसिफिक कॉज, कि क्या कॉज है। 50% में जो हम लिंक बनाने में समर्थ नहीं होते हैं। जो कुछ नोन कॉजेज़ हैं उनमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर, देयर इज़ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर रिजल्टिंग इन वेरियस डिसीजेस। ऑलमोस्ट जो है मॉडर्न सिस्टम तो सारी बीमारियों के पीछे यही दो कारण देता है कि जेनेटिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल। बट मोस्टली जो इटियोलॉजी होती है मल्टीफैक्टोरियल होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक ही है या सिर्फ इन्वायरमेंटल है, दोनों ही कारण इकट्ठे हो सकते हैं। तो जेनेटिक जो है जो कंपोज करते हैं अराउंड 10 to 30% केसेस में जो हम जेनेटिक कॉज आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर जीन के डिफेक्ट के कारण इस पर्टिकुलर बर्थ डिफेक्ट हुआ है। इन्वायरमेंटल 5 to 10% कंजेनिटल अनॉमलीज में कारण रहता है। मल्टीफैक्टोरियल जो है दोनों को मिला के लगभग 20 to 35% केसेस में रहता है। दैन जेनेटिक कॉजेज़ में दोनों ही तरह से हो सकता है। जेनेटिक कॉजेज़ देयर में भी इनहेरिटेबल कंजेनिटल अनॉमलीज की जो है कोई जीन डिफेक्टेड है और वो इनहेरिट हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें जो है कंजेनाइटली देयर इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, देयर में भी फंक्शनल डिफेक्ट्स, तो वो जो है इनहेरिट करते चले जाते हैं। एंड देयर में भी पॉइंट म्यूटेशन, कि आज तक कुछ नहीं था, उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी कंजेनिटल अनॉमली की हिस्ट्री नहीं है और म्यूटेशन हुआ और उस पर्टिकुलर बच्चे में जो है उस जीन के म्यूटेट होने के कारण कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो जीन जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, अगर उसकी म्यूटेशन होती है तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है डिफॉर्म्ड हो जाएगा, बनेगा नहीं, माल फॉर्म्ड हो जाएगा। देन देखा गया है कि कॉन्सैंग्यूनिटी सब जानते हैं। कॉन्सैंग्यूनिटी इज मैरिज इन ब्लड रिलेशन। तो कॉन्सैंग्यूनिटी इंक्रीजेज प्रिवलेंस ऑफ रेयर जेनेटिक कंजेनिटल अनॉमलीज। जो रेयर कंजेनिटल अनॉमलीज होती हैं वो कॉन्सैंग्यूनस मैरिज के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होती हैं, एंड इट नियरली डबल्स द रिस्क फॉर मॉर्टिलिटी। उनमें डेथ रेट जो है बाकी कंजेनिटल अनॉमलीज से डबल होती हैं। और मेन जो कंजेनिटल अनॉमलीज देखी गई हैं वो मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है सबसे मेन रहती है कॉन्सैंग्यूनस मैरिज में। बोला गया है कि ह्यूमन ब्रेन तभी जो है ग्रोथ करता है जब आप नॉन कॉन्सैंग्यूनस मैरिजेस करेंगे। इवोल्यूशन के लिए जो है आपके जीन पॉलीमॉर्फिज्म होना ज़रूरी है। देन कम्स सम एथनिक कम्युनिटीज़ जैसे अस्काई ज्यूज हैं या फिन्स हैं, तो उनमें जो है दे हैव कंपेरेटिवली हाई प्रिवलेंस ऑफ रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस। तो कुछ एक कम्युनिटीज़ जो हैं पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन के लिए ससेप्टिबल होती हैं, जैसे कि उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस और हेमोफीलिया का एग्जांपल है। देन जेनेटिक्स के बाद आती है सोशियो इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे मेन जो रहते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखा गया है कि कंजेनिटल एनॉमलीज आर मोर कॉमन इन पुअर कंट्रीज़, और उसमें उसके पीछे कारण क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो इंट्रायूटराइन इन्फेक्शन होते हैं दे रिजल्ट इन वेरियस कंजेनिटल एनॉमलीज। तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देखा गया है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स अपीयर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि हमने हाइड्रोसेफेलस में बात की थी कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला और साइटोमेगालोवायरस कैन रिजल्ट इन एक्वाडक्टल स्टेनोसिस और
और भी कई कारणों से वो हाइड्रोसेफेलस कॉज कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स आर वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। And other factors which in poor socioeconomic status के countries में जो other factors होते हैं, there is lack of access to sufficient nutritious food by pregnant women। तो pregnant women को sufficient और nutritious food नहीं मिलता है। increased exposure to agents और factors such as infection, alcohol के भी incidence ज़्यादा रहता है। और एक बड़ा और कारण है कि एंटीनेटल डायग्नोसिस नहीं होता है, पुअरर एक्सेस टू हेल्थ केयर और स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है। तो जो है एंटीनेटल पीरियड में हम, या जिसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड में हम जो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए डिजीज़ बर्डन बढ़ता जाता है। दैन इन्वायरमेंटल में मैटरनल के फैक्टर, मदर के फैक्टर की बात करें तो मदर के फैक्टर्स में मदर की एज, सब जानते हैं कि विद द इंक्रीजिंग एज देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एनॉमलीज। जैसे डाउन सिंड्रोम का अगर देखें इंसिडेंस, तो 18-20 साल की फ़ीमेल में अगर प्रेगनेंसी होती है तो इट में बी अराउंड 1000, और वो जो है इतना बढ़ जाता है अगर 35 प्लस की फ़ीमेल में अगर प्रेगनेंसी होती है तो डाउन सिंड्रोम के इंसिडेंस इज़ 1 in 40। तो इंसिडेंस जो है इसके साथ क्रोमोसोमल एनॉमलीज के बढ़ते जाते हैं। दैन लाइफस्टाइल, मदर के लाइफस्टाइल से भी जो है बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स देखे गए हैं। जैसे लाइफस्टाइल में आगे हम बात करेंगे, अल्कोहल, टोबैको यूज़ और इस तरह से। इलनेसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चाहे वो इन्फेक्शियस इलनेसिस हैं, चाहे मेटाबॉलिक इलनेसिस हैं, दे कैन डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस ऑफ fetus and result in arrest of growth of some parts, और जिसके कारण कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं। जैसे डायबिटिक मदर्स में जो है कुछ स्पेसिफिक कंजेनाइटल एनॉमलीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, इस तरह से बहुत सारे कंजेनाइटल एनॉमलीज उनमें देखी गई है। दैन एंटीनेटल केयर कैसी मदर को मिल रही है, मदर कैसी करती है, तो वो भी जो है ज़रूरी है, जिसमें कि मेडिकेशन यूज़ जो है इंडिया में बहुत सारा टाइम जो हमको पता ही नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही यूजली जो है टेराटोजेंस हम यूज़ कर जाते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोर देन 50% ऑफ द फीमेल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर प्रेगनेंसीज इन इंडिया। दैन नॉन यूज़ ऑफ पेरिकॉन्सेप्शनल फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है एक बहुत जिसको बोलेंगे कि चीप 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 एजेंट है जो कि प्रिवेंट कर सकता है एंटीडीज़ को। बट फॉलिक एसिड पेरिकॉन्सेप्शनल पीरियड में यूज ही नहीं कर रही हो मदर्स, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इन्वायरमेंट, इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट ख़राब हो, जैसे आयुर्वेद में बोला है क्षेत्रम्बु बीजानाम जो है, तो क्षेत्र ही जो है सही नहीं है। जैसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है, दे कैन रिजल्ट इन वेरियस कंजेनिटल डिफेक्ट्स। पेरेंटल कॉन्सेंग्यूनिटी की हमने बात कर ली। प्रीवियस मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ अगर पहले हुई हों तो जो वो इंडिकेट करते हैं कि पुरानी जेनेटिक कई प्रॉब्लम्स हैं, रिसेसिव करेक्टर्स दोनों मेल फीमेल में, इसलिए जो है ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इनहेरिटेबल कंजेनिटल डिजीज़ अगर पहले हुई है सिबलिंग में, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इटियोलॉजी ऑफ कंजेनिटल एनॉमलीज। दैन बीमारियों की हमने बात की मैटरनल में कि डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इट कैन रिजल्ट इन वेरियस कंजेनिटल डिफेक्ट्स। अदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनमें भी जो है मदर को अगर वो कंट्रोल नहीं है तो उसमें जो है होम्योस्टेसिस फिटस की बिगड़ सकती है, एंड देन द डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस में अरेस्ट ग्रोथ ऑफ सम पार्ट और सम टिश्यू रिजल्टिंग इन कंजेनिटल एनॉमलीज। एक्सपोजर टू टेराटोजेंस, तो टेराटोजेंस का एक्सपोजर होने से भी कंजेनिटल एनॉमलीज हुई हैं। बेसिकली जो टेराटोजन का कंसेप्ट आया था थैलिडोमाइड से। थैलिडोमाइड वाज अ ड्रग यूज्ड इन 1940s और 50s फॉर इंड्यूसिंग स्लीप इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, और उसके यूज़ के बाद देखा गया कि द बेबीज़ वर बॉर्न विद फैकोमेलिया, आगे हम देखेंगे भी पिक्चर्स। तो फैकोमेलिया से ग्रसित थे, उनके लिम्स जो हैं नॉर्मली शॉर्ट थे, एब्सेंट थे, तो वहाँ से कंसेप्ट ऑफ टेराटोजेंस आया था। टेराटोजेंस आर एजेंट्स which affect the normal growth, structural or functional growth of fetal
body parts. तो कुछ ऐसे substances, they may be drugs, they may be radiation, they may be substance abuse, it may be infectious agent, or it may be metabolic disturbances in the mother's plasma. तो वो सारी चीज़ें जो है टेराटोजन एक्ट कर सकती हैं. मे बी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, देयर आर सो मैनी सब्सटेंसेस विच कैन एक्ट टेराटोजन्स. तो टेराटोजन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस फैक्टर which can alter the normal structural development of a embryo or fetus, producing a birth defect or congenital anomaly. तो सब्सटेंस अब्यूज है, मदर में स्मोकिंग है, दे आर नोन टू कॉज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ congenital anomalies. टोबैको है, अल्कोहल इज नोन टू कॉज मेंटल रिटार्डेशन. आयुर्वेद का पाठ करेंगे तो हम बात करेंगे आयुर्वेद में. चरक, आचार्य चरक में भी लिखा गया है, चरक संहिता में, मध्य से जो है मंदबुद्धि होना, प्रेग्नेंट लेडी अगर मध्य लेती है तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेराटोजेनिसिटी इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड इन आयुर्वेद. मॉडर्न वालों में तो अभी आया है, बट आयुर्वेद में सदियों से जो है टेराटोजेनिसिटी का कॉन्सेप्ट है. दैन एक्सपोजर टू पर्टिकुलर मेडिसिन जैसे एंटी कन्वल्सेंट. स्टार्ट तो थैलिडोमाइड से हुआ था, वो तब पता चला था कि ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज सम बर्थ डिफेक्ट्स. दैन आज हम बहुत सारी मेडिसिन ऐसी जानते हैं जिनके कारण जो है बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स यूजुअली जो वालप्रोइक एसिड है, कार्बामेज़पिन है, वो जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज दे आर एंटीफोलिएट एजेंट्स. तो वो जो है फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस उनमें ज़्यादा रहते हैं. तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कॉमनली यूज्ड एंटी हाइपरटेंसिव है, उनको भी प्रेगनेंसी में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं. दैन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, या आप जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी. एक्सपोजर टू रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण भी जो है फिटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यूजली आया था हिरोशिमा नागासाकी 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने. तो उसके बाद जो है जापान में बहुत सारे फिटसिस या बहुत सारे न्यूबॉर्न्स जो हैं congenital anomalies के साथ पैदा हुए थे. तो वहाँ से आइडिया हुआ था कि रेडिएशंस कैन कॉज सीरियस इफ़ेक्ट ऑन नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फिटस. तो आजकल जो रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं सीटी स्कैन वगैरह में या एक्सरे में, तो दे आर पोटेंशियल रिस्क फॉर द congenital anomalies. दैन इन्फेक्शंस की हमने बात कर ली, स्टॉर्च, rubella, toxoplasmosis, all these things. Poor nutrition is sometimes also implicated for some of the congenital anomalies, mainly folic acid, B12. Folic acid is well established to reduce the risk of neural tube defects by मे बी 40 to 60%. अगर फॉलिक एसिड का यूज हम करेंगे तो इंसिडेंस जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, स्पाइना बाइपिटा का इंसिडेंस है, उसको हम इतना कम कर सकते हैं. दैन इन्फेक्शंस में हम बार बार बात कर रहे हैं स्टॉर्च की, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड herpes, they all can result in some of the congenital anomalies. तो डायग्नोसिस कैसे करें congenital anomalies का? वी हैव टू अप्रोचेज. वन इज़ प्रीनेटल की गर्भावस्था में ही, प्रेग्नेंट लेडी में ही हम जो है बच्चे की जांच करके पता करें कि congenital anomalies तो नहीं है, या पोस्ट नेटल पैदा होने के बाद तो दिख ही जाएगा. तो प्रीनेटल अप्रोचेस में जो हमारे पास congenital anomalies के लिए करते हैं, तो जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है यूएसजी. जो हम यूएसजी कैन डिटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज़, इवन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह को भी जो है यूएसजी से पता चल जाता है. किडनी का स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जो हैं यूएसजी से लेवल टू जो यूएसजी करते हैं उससे हो सकता है. बाकी ट्राइजोमीज़ के लिए या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो हाई रिस्क मदर्स हैं, उनमें हम जो है मदर का सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन और गोनाडोट्रोपिन लेवल जो है चेक करते हैं. उससे हमको इन चीज़ों का आइडिया होता है. और जहाँ पर ज़्यादा सस्पेक्शन होता है तो हम वी कैन गो फॉर एमनियोसेंटोसिस और सीबीएस इज़ कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, जो है 16 से 20 हफ्ते में करते हैं, जहाँ पे हमको हाई रिस्क लगती है प्रेगनेंसी फॉर congenital anomalies. तो साइटोजेनिक स्टडीज़ के लिए हम जो है सीबीएस कराया जा सकता है. और मदर की स्क्रीनिंग तो सभी की करते हैं एंटीनेटल पीरियड में.
for maternal diseases like diabetes, hypothyroidism and all these things, और infections के लिए. Then पोस्टनेटल अप्रोचेज़ में एंटीनेटल अप्रोचेज़ में अगर हमको लगता है कि कोई पोटेंशियल ऐसी डिजीज़ या कन्जेनिटल डिफेक्ट हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हम डिटेक्ट कर पाते हैं CBS कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग से, या बाकी जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और ये हैं, तो वी कैन गो फॉर MTP. और MTP अब जो है रिसेंटली MTP एक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ है, जो पहले 20 वीक्स तक MTP वाज अलाउड. नाउ ऑन मेडिकल ग्राउंड इट इज़ अलाउड फॉर अप टू द 25 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. एंड पोस्टनेटल अप्रोच में जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है. तो हिस्ट्री में जैसे उसने फोलिक एसिड नहीं लिया, एग्जामिनेशन में हमको दिख रहा है सामने कि कोई नोडुलर स्वेलिंग है या डिफेक्ट है, हेयर लिप, क्लेफ्ट पैलेट, देयर आर सो मैनी congenital anomalies which are visually identifiable. तो अदर जो फंक्शनल हो सकती हैं उनके लिए हम जो है बायोकेमिकल एसेज या हार्मोनल एसेज. तो न्यूनाइटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंडिया में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, फिर भी अब कुछ चीज़ों के लिए कराई जाने लगी है. जैसे TSH लगभग सभी न्यूबॉर्न्स में कराया जाता है कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है. बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में न्यूनाइटल स्क्रीनिंग बहुत एडवांस है कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिटेक्ट करने हैं, उनके लिए बायोकेमिकल एसेज जो है कराए जाते हैं, या साइटोजेनिक स्टडीज़ कराई जाती हैं कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म तो नहीं है. दैन इंटरनल डिफेक्ट्स हैं तो उसके लिए हम जो USG को इमेजिंग लाइक CT, एक्सरे, we can do these things for internal congenital anomalies which are not visible to eye. Then कुछ some congenital common congenital anomalies की पिक्चर्स देख लें. जैसे CNS में जो एनएनसेफली अपर टू पिक्चर्स, जहाँ पे एनएनसेफली मतलब ब्रेन बना ही नहीं है, क्रेनियम बनी ही नहीं है, तो हेडलेस है. एनएनसेफली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट congenital anomaly, CNS की जो कॉमनेस्ट congenital anomaly है. लोअर टू पिक्चर्स हाइड्रोसेफेलस. Then neural tube defects, NTDs. तो NTDs are the commonest preventable congenital anomaly, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेरिकॉन्सेप्शनल यूज़ ऑफ फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड के यूज़ से हम जो है कम कर सकते हैं. तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो अपर इमेज है उसमें 4 इमेजेस हैं. फर्स्ट में बिल्कुल नॉर्मल स्पाइन है, सेकंड में आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो है स्पाइनटस प्रोसेसेस आपको नहीं दिख रही है वर्टिब्रा में कि वहाँ पे गैप है, दैट इज स्पाइना बाइफिटा, बट इट इज़ occulta, इट इज़ नॉट विजिबल टू नेक्ड आई. दैन थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं मेनिंजोसील, तो कि मेनिंजीज उस डिफेक्ट के थ्रू बाहर आ गई एंड ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर इज विजिबल ओवर स्किन, दैट इज़ मेनिंजोसील. फोर्थ में जो है मेनिंजीज के साथ साथ न्यूरल टिश्यू भी आ गया, दैट इज़ नोन एज माइलोमेनिंजोसील. तो नीचे पिक्चर्स में लंबोसेक्रल और जो ऑक्सीपिटल मेनिंजोसील जो है विजिबल है नीचे की 2 पिक्चर्स में. यहाँ माइलोमेनिंजोसील में जो है, मेनिंजोसील में देखेंगे इट हैव स्किन कवरिंग, थोड़ा सा जो है डार्क ब्लूइश दिखती हैं स्किन के नीचे, बट स्किन कवरिंग यूजली मेनिंजोसील में रहती है, जबकि माइलोमेनिंजोसील में स्किन कवरिंग नहीं रहती है. इट इज़ पार्चमेंट लाइक मेम्ब्रेन जो कि शाइन कर रही है. फर्स्ट इमेज में, सेकंड और थर्ड में रप्चर हो गई है एंड लिकिंग CSF. एंड फोर्थ पिक्चर जो है जिसमें माइलोमेनिंजोसील के कारण न्यूरल टिश्यू जो है डैमेज होने के कारण नीचे आप देख सकते हैं कि लोअर लिम्स में डिफॉर्मिटी है, टेलिप्स है, क्लफुट है. दैन टेथर्ड कॉर्ड है, इसमें जो है टेथर्ड कॉर्ड की एक जगह कॉर्ड जो है टेंट टेंट में जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे ही बंध गई है कि कहीं पे स्कार टिश्यू के साथ अटैच हो गई, जिसके कारण स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉर्ड होती है. MRI की फिल्म्स हैं. नीचे वाली दिखा रही है डाइस्टेमेटोमेलिया. डाइस्टेमोमेटोमेलिया मतलब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. डाई मतलब 2 पार्ट्स में हो गई है, जिसका कारण क्या है, एरो दिख रहा है कि जो वर्टिब्रल बॉडी है इससे जो है एक प्रोसेस पीछे निकली है, बोनी प्रोसेस, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो देवर सम
CNS congenital anomalies. Then CBS में यूजली दे आर नॉट आइडेंटिफाइबल टू विजुअल जो एग्जामिनेशंस हैं, तो उनमें मेनली जो है टाइम के साथ डायग्नोस हो सकती हैं। तो जो कॉमनेस्ट हैं वो उसमें ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो पिक्चर्स बता भी रही हैं कि दो एट्रियम के बीच में डिफेक्ट है, दैट इज़ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसके सेप्टम जब पूरी तरह से एनाटॉमिकली क्लोज्ड नहीं है और देर इज़ डिफेक्ट। देन देर इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, जो डक्टस आर्टरियोसस फीटस में रहता है, उसका पेटेंसी रहना, उसमें जो है ब्लड फ्लो करते रहना न्यूनेटल लाइफ के बाद भी। देन VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो वेंट्रिकल जो हैं राइट और लेफ्ट उनके बीच में जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट होना। दैन इट इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो ये चार जो हैं कॉमनेस्ट CSDs हैं, इनको हम डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में टेट्रा बोलते हैं, तो चार डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो दिखाया गया देयर इज़ पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड देखेंगे आप तो डेक्स्ट्रो पोजिशन ऑफ आयोटा है, थर्ड इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड फोर्थ इज़ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये चार चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो ये चार जो हैं congenital heart diseases ली गई हैं। हालांकि more than 30 congenital heart diseases can be there. There may be juxtaposition of position of great arteries जो है हो सकती है partial anomalous और complete anomalous venous drainage. There are so many other congenital heart diseases. दैन GIT की बात करें तो GIT में जो है अट्रीजियाज, जैसे इसोफेजियल अट्रीजिया, ड्यूडनल अट्रीजिया, इंटेस्टाइनल अट्रीजिया, इम्परफोरेटेड एनस, दे आर कॉमन। तो इसमें फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इसोफेजियल अट्रीजिया और ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला दिखाया है कि इसोफेगस जो है बंद है एक एंड से और दूसरी एंड से वो ट्रैकिया में जुड़ी हुई है। इसोफेजियल अट्रीजिया की और इमेजेस हैं जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड में दिखाया गया है कि इसके बीच की इसोफेगस बनी नहीं है। अट्रीजिया मतलब कोई पार्ट बना ही नहीं है। दैन अनदर इज़ पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें सेकंड इमेज में हम देख रहे हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो हाइपरट्रॉफिड, इट इज़ आल्सो नोन एज कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो वहाँ पे पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है हाइपरट्रॉफी के कारण वहाँ का जो ल्यूमन है नैरो हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाती है। Then another congenital anomaly of GIT is congenital megacolon, जिसको हर्शस्प्रंग डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। इसमें क्या रहता है कि एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट रहता है, जैसे सबसे नीचे वाली इमेज में देखेंगे राइट साइड में कि जहाँ डायलेट हुआ है कॉलॉन, उससे नीचे जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है जो नैरो है और ये ई गैंग्लियोनिक है। इसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होती है, तो स्टूल आगे पास नहीं होता है, स्टूल इकट्ठा होता रहता है और लार्ज कॉलॉन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज मेगा कॉलॉन। दैन अदर जो हैं वो हैं गैस्ट्रोस्काइसिस है और एम्फेलोसील है। दोनों एक जैसी पिक्चर्स देखने में आ रही हैं, दोनों में इंटेस्टाइन जो है एब्डोमेन से बाहर लटकी हुई हैं, बस अंतर इतना है कि एम्फेलोसील में सैक में रहती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे जो सैक बना रहता है उसमें जो रहती हैं, जबकि गैस्ट्रोस्काइसिस में देर इज़ नो सैक के अंदर नहीं रहती हैं। दैन देयर आर सम हर्निया, कॉन्जेनिटल हर्नियाज लाइक डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ऊपर वाली पिक्चर दिखा रही है कि एक साइड नॉर्मल है, दूसरी साइड इंटेस्टाइन देख सकते हैं आप लेफ्ट लंग में, लेफ्ट साइड ऑफ द जो थ्रेसिक कैविटी है। और नीचे वाली इमेज में देखेंगे कि अम्बिलिकल हर्निया है, कि अम्बिलिकस फुली हुई सी दिख रही है बट स्किन है उसके ऊपर। दैन अदर हर्नियाज भी हो सकते हैं, फीमोरल हर्निया भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन नहीं होती है, बट कॉर्नल अट्रेसिया जो है वन ऑफ द कॉमनेस्ट रेस्पिरेटरी एनोमली जो रहती है। टैफ की हमने बात पहले ही कर लिया, ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला भी हो सकता है। दैन पल्मोनरी एजेनेसिस, जैसे लोबर एजेनेसिस है राइट साइड में राइट लंग की, और लेफ्ट लंग की जो है कंप्लीट एजेनेसिस दिख रही है। किडनीज़ में हॉर्सशू किडनी हो सकती है कि जो हॉर्सशू की तरह जो दोनों किडनीज़ लोअर पोल से जुड़ी हुई हों। दैन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में बहुत सारे सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट जो है किडनी में हो सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है किडनी में, और भी कई तरह की किडनी की एनॉमलीज हो सकती हैं।
दैन जेनेटेलिया में देखेंगे तो हाइपोस्पेडियाज, एपिस्पेडियाज। हाइपोस्पेडियाज आर मोर कॉमन देन एपिस्पेडियाज। हाइपोस्पेडिया वेंट्रल सरफेस में जो है यूरेथ्रा का खोलना, यूरेथ्रा जो ग्लांस पे ना खुल के वेंट्रल रैपे पे कहीं जाके खुलती है, जैसे सेकंड और थर्ड इमेज में हम देख सकते हैं कि एक जो है ग्लांस से नीचे खुल रही है और दूसरी जो है स्क्रोटम के आसपास खुल रही है यूरेथ्रा। देन देयर में भी अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है, इसमें राइट टेस्टिस अनडिसेंडेड है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो है बहुत मेजर नहीं होती हैं एनॉमलीज एंड लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं, बट दे आर कॉमन और विजिबली जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो रिपोर्टेड मोर कॉमनली। तो उसमें जो सबसे कॉमनेस्ट है वो क्लब फुट, जो जो पोटेंशियली मेजर बोल सकते हैं हम। माइनर तो बहुत सारी हो सकती है मस्कुलोस्केलेटल में, बट जो पोटेंशियली स्लाइटली मेजर बोलते हैं तो उनमें क्लब फुट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट। ऊपर की इमेज दिखा रही है कि यूनिलेटरल है, नीचे की दो इमेजेस दिखा रही हैं कि बायलेटरल क्लब फुट है। देन एमेलिया, फैकोमेलिया। तो फोकोमेलिया जो है सेकंड और थर्ड इमेज, फर्स्ट इमेज जो चारों लिम्स एब्सेंट है उनको छोड़ के सेकंड और थर्ड इमेज देखेंगे आप तो लिम्स आर वेरी स्मॉल एंड जो हैंड्स हैं वो जो है लगता है कि शोल्डर के साथ अटैच्ड हो गए हैं लिम्स छोटे होने के कारण। दैट इज़ फोकोमेलिया। एंड एमेलिया इज एब्सेंस, कि है ही नहीं, ना हैंड है ना पूरा लिम्ब है। तो फर्स्ट इमेज जिसमें लेटा हुआ है बच्चा वो एमेलिया है, और दूसरे जो है फोकोमेलिया। वो एडल्ट की पिक्चर इसलिए लगाई है कि थैलेडोमाइड का ध्यान रहे कि जब थैलेडोमाइड यूज़ हुआ था तो उस टाइम जो है इस तरह के बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, अब नहीं होते। दैन माइनर जो मस्कुलोस्केलेटल के एनॉमलीज हैं, पॉलीडेक्टाइली है दोनों तरफ की, एक्सियल और एक्स्ट्रा एक्सियल, अंडर साइड भी है और रेडियल साइड भी है। दैन सिंडेक्टाइली, जिसको हम जो बैब्ड फिंगर्स भी बोल सकते हैं कि बैबिंग हो जाती है स्किन फिंगर्स में। मिसलेनियस में क्लेफ्ट लिप है, यूनिलेटरल बायलेटरल एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट पैलेट है, सेकंड इमेज है। दैन क्लेफ्ट पैलेट में भी ओनली क्लेफ्ट पैलेट, जैसे फर्स्ट बड़े बच्चे में दिख रहा है पीछे सॉफ्ट पैलेट क्लेफ्टेड है। दैन इट में बी एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप। एंड एंडोक्राइन में क्रिटिनिज्म जो कर्नाइटल हाइपोथायराइडिज्म है, कोर्स फेसी है, ओपन माउथ है, प्रोट्रूडिंग टंग है, अम्बलाइकल हर्निया। देखो तीनों चारों पिक्चर्स में जो अम्बलाइकल हर्निया दिख रहा है, तो ये कर्नाइटल हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण दिख रहे हैं। देन बात कर रहे हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट तो कुछ खास नहीं है, सबसे पहले प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन जो है कैसे कर सकते हैं हम? जेनेटिक काउंसलिंग जो सबसे पहले है कि हमको शादी से पहले जो जेनेटिक जो जीनोम है उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए हिस्ट्री से, और देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फैमिली में दोनों तरफ जो है कोई रिसेसिव ट्रेट तो नहीं चल रहा है जिसके कारण जो आगे बच्चे में कोई कंजेनिटल एनॉमली या मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन वार्नर मेटाबॉलिज्म जो यूजुअली रिसेसिव होते हैं वो तो नहीं हो जाएगा। तो जेनेटिक काउंसलिंग जो है सबसे मेन फैक्टर है टू प्रिवेंट, बिकॉज जहाँ मल्टीफैक्टोरियल है जेनेटिक है दोनों मिला के 40 के आसपास जो एटियोलॉजी 40% ऑफ द केसेस में एटियोलॉजी रहती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग करना सबसे ज़रूरी है। देन न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट, हमने देखा कि फॉलिक एसिड B12 डेफिशिएंसी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, और अगर उसको हम दें तो वी कैन प्रिवेंट दैम। हेल्दी लाइफस्टाइल में टोबैको और अल्कोहल का यूज़ ना करें। देन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर को जो है जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमिनेट करना, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स। तो जो गवर्नमेंट लेवल पे जो पंजाब हरियाणा की बेल्ट है जहाँ पे ज़्यादा जो है फसलें होती हैं वहाँ पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, तो दे में भी प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर, और उस वाटर को यूज़ करने वाली प्रेग्नेंट लेडीज़ में वहाँ पे कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं, तो उनको एलिमिनेट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना। ओनली जस्टिफाइड एक्सपोजर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टू मेडिकेशन और मेडिकल रेडिएशन एक पोटेंशियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी हो सकती है। यूजुअली जो है हम इंडियन सिनेरियो में प्रैक्टिस में we do not bother or we do not ask about the pregnancy status of the female। तो रिप्रोडक्टिव एज में 15 साल से 45-50 साल तक की फीमेल में हमेशा वी शुड आस्क फॉर द प्रेगनेंसी स्टेटस, और तभी जो है हम मेडिकेशन एडवाइस करें, और मेडिकल रेडिएशन तभी यूज़ करें जब जस्टिफाइड हो।
Then we should discourage consanguineous marriage, maternal substance use, reproduction after birth of first baby विद congenital anomaly. अगर एक बेबी जो है congenital anomaly वाला हुआ है तो वी शुड डिस्करेज फॉर रिप्रोडक्शन की, और बच्चे पैदा ना करें, हो सकता है दूसरे में भी हो। और इससे बढ़िया स्ट्रेटजी है कि इफ़ दे वांट देयर शुड बी एंटीनेटल चेकअप फॉर द congenital anomalies. Then late age of marriage and pregnancy, एक बहुत बढ़िया जो है स्कोप है जहाँ पे यूजली कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स में लेट एज मैरिजेस होती हैं और लेट एज प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें कि congenital anomalies के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको डिस्करेज किया जाए। तो फॉर प्रिवेंशन वी शुड कंट्रोल डायबिटीज़ बाय वेरियस मेजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है इंसुलिन यूज करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ताकि डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन इंडिया, और उस प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत सारों में देखा जाता है और एक मेजर फैक्टर हो गया है कि congenital anomalies के लिए, तो उसको कंट्रोल रखना और congenital anomalies को प्रिवेंट करना एक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हो सकती है। दैन वैक्सीनेशन फॉर रूबेला, congenital रूबेला सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए, जैसे लास्ट ईयर और लास्ट ईयर भी MMR के लिए जो है MR के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मास वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी, स्कूलों में जो है सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। तो रूबेला से बची रहे प्रेग्नेंट लेडी, सो दैट वी कैन प्रिवेंट congenital रूबेला सिंड्रोम एंड various congenital anomalies associated with congenital rubella syndrome. Then last and most important is increasing and strengthening education of health staff and other involved in promoting prevention of congenital anomalies. तो health staff, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि मेडिकेशन यूज़ करनी है प्रेगनेंसी में, कौन सी नहीं करनी है, उसका ध्यान रखना, उसके बारे में अवेयरनेस बताना, तो वो सारी चीज़ें जो हेल्थ स्टाफ की एजुकेशन में आना चाहिए। दैन मैनेजमेंट तो एज पर एनॉमली, जैसी एनॉमली होगी, सम फंक्शनल एनॉमलीज में बी ट्रीटेड मेडिकली, सम में रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर और सर्जिकल मैनेजमेंट, वाइल मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एनॉमलीज जो होती हैं, जैसे लिम्ब डिफेक्ट हैं, कुछ हैं, तो उसमें असिस्टिव डिवाइसेस, टेलिप्स है, क्लब फुट है, तो वहाँ पे हम प्लास्टरिंग करते हैं या इस तरह के शूज़ उसको बना के देते हैं, तो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, या सर्जिकल रिपेयर के ओपन आप सर्जरी कर रहे हैं और उससे जो है उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द एनॉमली की किस तरह की एनॉमली है, तो किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट congenital anomalies। आयुर्वेद का पार्ट इसके बाद लेंगे हम congenital anomalies से रिलेटेड, देन वन बाय वन congenital anomalies हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।